A cool and shining good morning to all of you, my dear students. I hope you all are good and fine and you are stay at home. I request you all of you that stay at home and do your work honestly. Yes, my dear students, yesterday we did 12.2 exercise 6, 7th and 8th sum, and today we will do the last sum, the most important sum of this exercise, 9th sum. Clear? Is there any doubt in the last sums? You can comment me in my comment box. Clear? And the 9th sum, the statement of 9th sum is, if field is in the shape of a trapezium, and you know the properties of trapezium, my dear students. In trapezium, opposite sides, there are two opposite pairs, one pair is parallel. In trapezium, only one, if one pair is parallel and other is unparallel, then this property holds in the trapezium. Clear? If it is a trapezium, one pair is parallel and other is unparallel, and it is given in the statement, if field is in the shape of a trapezium where the parallel sides are 10 and 25 meter and non-parallel sides are 13 and 14 meter. If one pair is parallel, then other is non-parallel. Here AB and CD non-parallel because they intersect, because they are slanty line ना, आगे जाके कहीं भी intersect कर सकते हैं. Clear? 13 and 14. Then we have to find out the area of this trapezium. We have to find out the area of this field ABCD. This field is in the shape of a trapezium. Understood statement? Yes, my dear students. I will tell you orally what we have to do in this sum. In this sum, we have to find out the area of this trapezium. Clear? हमें इसका एरिया निकालना है. And you know, my dear students, what is the area of the trapezium? Write in the comment box fast, my dear students. I will give you 1 minute. You have to write the area of trapezium in the comment box. I think you all are writing. Yes, I will tell you, half sum of parallel sides cross height. Half sum of parallel sides cross height is the area of this trapezium. Clear? And now, my dear students, parallel sides are here. Clear? But we don't have height. हमारे पास height नहीं है. So we have to do the solution for finding the height. After finding the height, we have to put the value in the area of trapezium. Clear? It means हमें इस solution में सबसे पहले height निकालनी है ट्रेपीजियम की. अब हाइट निकालने के लिए मैं कुछ कंस्ट्रक्ट करूंगी. इस कंस्ट्रक्ट के बेस पर हम हाइट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. क्लियर? फर्स्टली आई विल टेल यू ऑलरेडी. Here A, B, C, D is a trapezium. A field is in the shape of a trapezium. Clear? अब मैंने क्या किया, मैं कंस्ट्रक्ट करूंगी DE. I construct a line DE parallel to AB. मैंने एक लाइन DE कंस्ट्रक्ट की किसके पैरेलल? AB की. Write down this line. Firstly write down A, B, C, D is a trapezium. Is a trapezium. ठीक है? Trapezium. ABCD is a trapezium and construct a line D. इस पूरे trapezium में मैंने construct क्यों की? Firstly I will tell you. देखो मैंने एक line construct की AB के parallel. अब एक pair parallel हो गया and other pair automatically it is given in the statement this is parallel. अब एक quadrilateral में if two sides are parallel then this quadrilateral will become parallelogram. Yes my dear students. अब ये पैरेललोग्राम बन गया. अगर ये पैरेललोग्राम है देन अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. ठीक है? तो अगर ये 10 13 है, इट इज आल्सो 13. ये 10 है तो BE कितना हो गया? 10. अब कंप्लीट 25, BE 10. तो EC क्या रह जाएगा? फाइंड आउट. EC रह गया कंप्लीट BC माइनस BE. BC में से BE गया 25 माइनस 10, क्या रह गया? 15. दैट मीन्स EC हमारा है 15 मीटर. क्लियर? मैंने ये कंस्ट्रक्ट इसलिए की दैट सो दैट आई विल फाइंड आउट. मुझे ये लाइन की वैल्यू मिल गई, इसकी मेजरमेंट मिल गई. मैंने इस लाइन की मेजरमेंट को निकाला सो दैट आई ड्रॉ दिस कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन से मेरी ये लाइन जो थी वो लाइन सेम हो गई. अब ये मेरे पास है, ये है और ये भी आ गया. ये कंस्ट्रक्शन इसलिए हुई थी. ठीक है? अब राइट डाउन योर कंस्ट्रक्शन. सबसे पहले लिखते हैं ABCD is a trapezium and construct DE parallel
ए बी, मैंने कंस्ट्रक्ट किया डीई पैरेलल ए बी, ठीक है ना, एक मैंने कंस्ट्रक्ट किया डीई पैरेलल ए बी एंड मैंने हाइट ड्रॉ की जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैंने लिया डी एफ, मैंने हाइट ड्रॉ की एंड डी एफ परपेंडिकुलर, क्योंकि हाइट है दैट मींस इट विल मेक 90 डिग्री एंगल विद द बेस लाइन सो दैट इट विल बी ए हाइट ना, तो डीई डी एफ परपेंडिकुलर बीसी, सिर्फ ये दो लाइन कंस्ट्रक्ट की हैं, पैरेलल लाइन एंड परपेंडिकुलर। अब इसी पैरेलल लाइन के बेस पर ए डी ई बी क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बनाओ, क्लियर। अब आप लिखो वी हैव देयरफॉर ए डी पैरेलल, आप देखो मतलब ए डी पैरेलल बी 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 सी है तो बीई तो होगा ही होगा, ए डी पैरेलल बी सी गिवन, AD और BC पैरेलल गिवन थे, अगर AD और BC पैरेलल हैं तो AD और BE भी तो पैरेलल होंगे, क्लियर। दिस इंप्लाइज AD पैरेलल BE बिकॉज सॉरी BE पार्ट्स में पैरेलल। अगर देखो इफ दीज टू लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, तो ये मैं हाफ कर दूं तो ये भी तो पैरेलल ही होगा ना, यस वही कंसेप्ट यूज किया। अगर AD BC के पैरेलल है तो AD BE के भी पैरेलल ही होगा, क्लियर। AD पैरेलल B एंड कंस्ट्रक्शन से क्या लिया था, DE पैरेलल AB, ये लिया था, ये तो था हमारा बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन। एक कंस्ट्रक्शन से आया, एक गिवन था, इट मींस अपोजिट टू पेयर्स क्या बन गए, पैरेलल। इफ अपोजिट टू पेयर पैरेलल तो क्या बन गया, देयरफॉर ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, इफ अपोजिट टू पेयर्स आर पैरेलल देन इट विल बी ए पैरेललोग्राम, ठीक है। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लिख दो, दिस इंप्लाइज ए डी ई बी, ए डी ई बी इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम बन गया तो अपोजिट पेयर पैरेलल के साथ साथ क्या हो गए, यस माय डियर स्टूडेंट्स, इक्वल हो गए, ठीक है ना, इक्वल हो गए। तो जो AD की वैल्यू है वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, BE की, राइट डाउन AD इक्वल टू BE, कितना हो गया, AD 10 है तो BB 10 मीटर एंड AB की वैल्यू क्या है, जो AB है वो हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 13 मीटर, ये 10 हो गया वो 13 हो गया, क्लियर, 10 एंड 13, क्लियर। अब देखते हैं BE 10, अब हमें EC की वैल्यू निकालनी है, EC निकालो, EC इज इक्वल टू, देखो BE 10 BC 25, तो EC क्या हो जाएगा, कंप्लीट में से B को रिमूव कर दो, EC इक्वल टू BC माइनस BE, 25 माइनस 10 इक्वल टू 15 मीटर। ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन लेकर मैंने मेजरमेंट को लिखा है, अभी कोई सॉल्यूशन नहीं किया, क्लियर। फर्स्टली आई टुक द कंस्ट्रक्शन एंड देन आई राइट द ऑल मेजरमेंट, क्लियर। मैंने कंस्ट्रक्शन ली, क्या ली, DE और AB को मैंने लिया पैरेलल, क्लियर। Yes, my dear students, firstly I take DE and AB parallel and DF perpendicular BC, ये सब आ गया। Now we have, अब हमारे पास क्या है, BEC, एक ट्रायंगल है। मैंने कंस्ट्रक्शन इसलिए ली थी कि मेरे पास एक ट्रायंगल और ट्रायंगल की तीनों साइड्स आ जाए। देखो DEC, इट इज अ ट्रायंगल एंड दिस इज 14, 13 एंड 15, तीनों साइड्स आ गई। इस कंस्ट्रक्शन से ये 13 था तो ये 13 हुआ। इसी कंस्ट्रक्शन से अगर कंप्लीट 25 है तो मैंने क्या किया, एक कंप्लीट 25 है तो कंस्ट्रक्शन से ये 10 होगा, तभी तो ये 15 था। सिर्फ इस कंस्ट्रक्शन के बेस पर मेरे पास ट्रायंगल की तीनों साइड्स आ गई। नाउ व्हाट वी हैव टू डू माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। अब मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। आफ्टर दैट आई विल टेल यू कि मैंने ये एरिया क्यों निकालना, मुझे तो हाइट निकालनी थी, पहले एरिया निकालते हैं, ठीक है। अब आप लिखो इन ट्रायंगल DEC, इन ट्रायंगल DEC, ठीक है। A की वैल्यू क्या है 13, B क्या है 14 एंड C क्या है 15। आपके पास तीनों साइड्स है, तीनों साइड्स की मेजरमेंट है, मैंने लिख ली।
फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द सेमी पैरामीटर. अब आप सेमी पैरामीटर निकालोगे a प्लस b प्लस c बाय 2. ठीक है, यही निकालना है. इट मीन्स 13 प्लस 14 प्लस 15 बाय 2. Now you have to add all this and divide by 2. This is 42 divided by 2. That means 21 meter. Now our semi perimeter is 21 meter. Now we have to find the area by using Heron's formula. Clear? अब आप निकाल लो area of this triangle. Area of triangle DEC. DEC is equal to, firstly I have to write this area of this triangle is equal to, using Heron's formula है ना, आप Heron's formula use करोगे और एरिया निकालोगे. S into S minus A, S minus B into S minus C. यही होता है. S into S minus A into S minus B into S minus C. Clear? अब area of triangle D, अब आप लिखोगे ऊपर using Heron's formula. Using Heron's formula. हमने Heron's formula यूज किया ना. Using Heron's formula, area equal to this. Now my dear students, I will tell you. मैंने राइट लेफ्ट साइड और राइट साइड, लेफ्ट साइड पर लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, राइट साइड में मैंने Heron's formula यूज किया. अब देखो इस ट्रायंगल में हाइट की वैल्यू क्या है? h. यू नो द हाइट ना, आपके पास हाइट है DF. अब जहां हमने लिखा है एरिया ऑफ DEC इज इक्वल टू रूट S इंटू S माइनस इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी. अब इस एरिया के नीचे आप लिखोगे, क्योंकि एरिया है ना, एरिया की वैल्यू क्या लिखोगे? हाफ बेस क्रॉस साइड. आप हमारे पास वी हैव दिस लाइन, वी हैव दिस स्ट्रेट लाइन, हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन है. क्या है? ध्यान से देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC is equal to square root of S into S minus A into S minus B into S minus C. ठीक है, अब एरिया के नीचे लिखेंगे हाफ बेस क्रॉस साइड. हाफ, बिकॉज आपके पास इसकी हाइट है, बेस है EC, हाफ EC क्रॉस H is equal to S की वैल्यू क्या है? 21 into 21 minus 13, 21 minus 14 and 21 minus 15. Yes, my dear student, I took this step because I have to find the height of this triangle. अब हमारे पास एक एरिया Heron's है और एक होता है एरिया निकालने का हाफ बेस क्रॉस साइड. मैंने दोनों को यूज किया बिकॉज एक तरफ हमारा Heron's के तीनों वैल्यूज आंसर आएगा, एक तरफ हाफ बेस क्रॉस साइड. बेस वी हैव एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइट. यहां से हमारी हाइट की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, नाउ फाइंड आउट हाफ. EC की वैल्यू कितनी है? EC 15. हाइट को आप लिखोगे H एज इट इज. ठीक है ना, 21 माइनस 13 हो गया आपके पास 8 एंड 21 माइनस 14 है 7 एंड 21 माइनस 15 कितना है? 6. नाउ डोंट मल्टीप्लाई ऑल दिस, यू हैव टू मेक पेयर एंड देन यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट. ठीक है, निकालो. हाफ 15 क्रॉस H is equal to 21 की क्या निकालोगे? 7 क्रॉस 3. 21 होता है 7 क्रॉस 3 एंड 8 होता है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2. 7 एज इट इज और 6 हो गया 2 क्रॉस 3. ठीक है ना. हाफ 15 क्रॉस H. 7 का पेयर है, पेयर में से एक 7 बाहर. 3 का पेयर है, एक 3 बाहर. 2 का पेयर है, एक 2 बाहर और एक 2 ये है, एक 2 ये है. 2 के दोनों पेयर हो गए. ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो. हाफ 15 क्रॉस H इक्वल टू 17, 7 3 जा 21, 2 जा 42, 42 2 जा 84. आंसर आ गया. हाफ 15 क्रॉस H इक्वल टू 84. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ H. 84 क्रॉस 2 by 50. This is the value of H. Now find the value of H is 84 cross 2 by 15 means 168 by 15 meter. ठीक है, when you divide answer will be 11.2 meter. ठीक है, जब आप डिवाइड करोगे आंसर होगा 11.2 मीटर. दिस इज द हाइट ऑफ द ट्रायंगल. अब देखो मैंने कंस्ट्रक्शन, सो दैट आई टुक द कंस्ट्रक्शन.
बिकॉज सो दैट वी हैव टू फाइंड ऑल थ्री मेजरमेंट्स ऑफ द ट्रायंगल. अब तीनों मेजरमेंट आ गई, मैंने हीरोन्स फॉर्मूला लगाया, बट मुझे तो हाइट निकालनी है ना, तो जहां एरिया है वहां मैंने लिखा हाफ बेस क्रॉस हाइट. अब देखो एरिया की वैल्यू इसके इक्वल है, एरिया इसके इक्वल भी तो होता है सेम ट्रायंगल का. आई विल टेल यू वन बाय डूइंग एग्जांपल. एक ट्रायंगुलर शेप मेरे पास है, and if I know the all three side of a triangular shape, and if I know the height of this triangle also, अगर मुझे height भी पता है, तीनों sides भी पता है, तो एरिया मैं अगर हीरोन्स फॉर्मूले से निकालूं तो भी वही आंसर होगा, और अगर मेरे पास हाइट है हाफ बेस क्रॉस हाइट से निकालूं तभी वही आंसर होगा. दोनों आंसर इक्वल होंगे ना, सेम एज. अब तीनों साइड्स मेरे पास है, मैंने हीरोन्स यूज किया, इज इक्वल टू हाफ बेस क्रॉस हाइट, बिकॉज इसी ट्रायंगल का बेस और इसी की हाइट ली, दोनों आंसर सेम होंगे तो मैंने इक्वल रख दिया. एंड आफ्टर इक्वल टेक इक्वल ऑल साइड्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h. अब h आ गया, अब क्या निकालना है? दिस इज फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, एंड नाउ थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या होती हैं? AG प्लस BC एंड क्रॉस हाइट. यही है ना, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्रॉस हाइट. फाइंड आउट हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या होंगी? 10 प्लस 25. 10 प्लस 25 क्रॉस हाइट की वैल्यू है 11.2. हाफ 10 प्लस 25 हो गया 35 क्रॉस 11.2. अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 2, 2 5 10 और 1 डॉट 2 6 12. तो 35 क्रॉस 5 क्रॉस डॉट 6 की मल्टीप्लाई करोगे, आंसर विल बी 196 स्क्वायर मीटर. आंसर होगा 196 स्क्वायर मीटर. दिस इज योर आंसर. I will repeat this question again. We have to find the area of this trapezium. हमें इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है. एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्रॉस हाइट्स. ठीक है, अब हमारे पास पैरेलल साइड्स तो हैं, बट वी डोंट नो द हाइट, सो वी टुक ऑल दिस प्रोसेस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइट. हमने कंस्ट्रक्शन ली, इस तरीके से ली कि साइड का जो ट्रायंगल है उसकी तीनों साइड्स आ गई. ठीक है, और हाइट को मैंने ले लिया h. अब मैंने तीनों ट्रायंगल है, हाइट है, तो मैंने हाफ बेस क्रॉस हाइट और हीरोन्स को इक्वल रख दिया, बिकॉज एक ही ट्रायंगल का एरिया 2 अलग अलग वे से निकालूंगी, आंसर सेम होगा. ठीक है, तो यहाँ से h की वैल्यू आ गई. h की वैल्यू आते ही मैंने क्या कर दिया? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के फॉर्मूले पुट कर दिया. दिस इज माय आंसर. इफ देयर इज एनी डाउट देन यू कैन कमेंट मी, यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन कॉल मी. थैंक यू बेटा, दैट्स इट.